Good morning, students. This is Dr. Kamlesh Sharma, Associate Professor, RR College, Alwar. In a four-terminal network, two terminals act as input port and other two terminals act as output port, as we have discussed earlier in a video of circuit analysis, link given in the description. Thus, a four-terminal network can be called as a two-port network. एक चतुर टर्मिनल जाल में दो टर्मिनल्स इनपुट के लिए होते हैं और दो टर्मिनल्स आउटपुट के लिए। इस प्रकार एक चतुर टर्मिनल जाल को द्विद्वारक जाल या टू पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। यहाँ इनपुट टर्मिनल्स के बीच में सोर्स जनरेटर लगाया हुआ है और आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में हमने लोड लगाया हुआ है। इस प्रकार हमारे पास चार क्वांटिटीज आती हैं, E1, I1, E2 और I2। E1 इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाइड वोल्टेज है और E1 इनपुट करंट है। E2 आउटपुट टर्मिनल्स पर वोल्टेज है और I2 आउटपुट करंट है। Now, what is driving point impedance? The ratio of input voltage E1 and input current I1 when all other energy sources of the circuit are removed and replaced by their internal impedances is called driving point impedance or input impedance Zin of the circuit. The inverse of the input impedance Zin is called driving point admittance Yin. निवेशी वोल्टता E1 और निवेशी धारा I1 का अनुपात जब परिपथ के अन्य सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। इस प्रतिबाधा का व्युत्क्रम परिचालन बिंदु प्रवेश्यता Yin कहलाता है। So, Zin is equal to E1 upon I1 and Yin is equal to I1 upon E1 जब अन्य सभी एनर्जी सोर्सेज का मान शून्य मान लिया जाता है। Now, if the network has many loops, then in a particular mesh, that is jth mesh, the ratio of applied generator voltage in the mesh and the current provided by it will be the input impedance Zin for that generator. यदि परिपथ में अनेक पाश हों तो किसी पाश या jth पाश में प्रयुक्त जनित्र वोल्टता व उसके द्वारा दी गई धारा का अनुपात उस जनित्र के लिए निवेशी प्रतिबाधा Zin होता है। If we connect a voltage source in a particular mesh of the network, current flows in the other meshes also. So, by applying a voltage Ej in jth mesh and assuming all other source voltages as 0, if the current in kth mesh is Ik, then the ratio of Ej and Ik is called transfer impedance ZTJK for the J and K meshes. Thus, ZTJK is equal to Ej upon Ik. For the circuit shown above, ZT12 can be written as E1 upon I2. हमें पता है कि किसी भी पाश में वोल्टेज सोर्स लगाने पर अन्य पाशों में भी धारा प्रवाहित होती है। इसलिए यदि किसी जेवें पाश में वोल्टता Ej प्रयुक्त करने पर तथा अन्य वोल्टेज सोर्स को 0 लेने पर यदि केवें पाश में धारा Ik प्राप्त होती है तो वोल्टता Ej व धारा Ik का अनुपात J व K पाशों के लिए आंतरिक प्रतिबाधा या ट्रांसफर इम्पीडेंस ZTJK कहलाती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ZT12 is equal to E1 upon I2 होता है।
When the circuit is formed by bilateral impedances, using the principle of reciprocity, the transfer impedance ZTJK between J and K meshes is equal to the transfer impedance ZTKJ between K and J meshes. Therefore, ZTJK is equal to ZTKJ. We have studied earlier about the bilateral impedances in detail. For the circuit shown above, we can write ZT12 is equal to ZT21. It means E1 upon I2 is equal to E2 upon I1. The inverse of the transfer impedance ZT is called the transfer admittance YT. यदि परिपथ में द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं लगी हों तो व्युत्क्रमता सिद्धांत के अनुसार पाश J व K के मध्य अंतरित प्रतिबाधा ZTJK, पाश K और J के मध्य अंतरित प्रतिबाधा ZTKJ के बराबर होती है, अर्थात ZTJK is equal to ZTKJ. द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं किसे कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ZTJK is equal to ZTKJ होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ZT12 is equal to ZT21, अर्थात E1 upon I2 is equal to E2 upon I1. अंतरित प्रतिबाधा ZT का व्युत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता कहलाता है. किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के लिए मैश इक्वेशंस को इस प्रकार लिखा जा सकता है. E is equal to Z into I. यहाँ Z एक इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, E वोल्टेज मैट्रिक्स और I करंट मैट्रिक्स है. Z एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जबकि E और I कॉलम मैट्रिसेस होते हैं. किसी एक ऐसे नेटवर्क में जिसमें 3 मैशेस हों, हम Z को इस प्रकार लिख सकते हैं: Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33. इस Z मैट्रिक्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं. किसी भी टर्म का कोफैक्टर निकालने के लिए हम उस टर्म की रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं और बाकी जो टर्म्स बचती हैं वो कोफैक्टर होता है. यहाँ Z11 के कोफैक्टर को डेल्टा 11 लिखा गया है. Z11 के कोफैक्टर निकालने के लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं और हमारे पास जो एलिमेंट्स बचते हैं वो बचते हैं Z22, Z23, Z32, Z33. इस प्रकार डेल्टा 11 का मान हो गया Z22, Z23, Z32, Z33. इसी प्रकार Z12 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं और हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेंगे Z21, Z23, Z31, Z33. इसलिए हम डेल्टा 12 को लिख सकते हैं Z21, Z23, Z31, Z33. और इसी तरह बाकी सारे कोफैक्टर्स भी निकाले जा सकते हैं. For a network with many loops, the driving point impedance of the rth mesh will be equal to the ratio of the determinant delta Z of impedance matrix of the circuit and cofactor delta RR of the RR term of the determinant, that is ZRN is equal to delta Z upon delta RR. किसी परिपथ जाल में यदि हमें rth पाश की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालनी हो तो वह डेल्टा Z और डेल्टा RR के अनुपात के बराबर होती है. Similarly, the transfer impedance ZTJK between Jth and Kth meshes will be equal to the ratio of determinant delta Z of impedance matrix and cofactor delta JK of JK term multiplied by -1 to the power j plus k, that is ZTJK is equal to delta Z upon delta JK multiplied by -1 to the power j plus k.
इसी प्रकार J और K पाश के मध्य अंतरित प्रतिबाधा निकालने के लिए हम डेल्टा Z और डेल्टा JK का अनुपात लेते हैं और उसे -1 j + K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के लिए एक नेटवर्क लेते हैं और उसके लिए Zin और Zt का मान निकालते हैं। यहाँ डायग्राम में एक नेटवर्क शो किया गया है जिसमें दो लूप्स हैं, इनपुट वोल्टेज E है और लोड ZL लगा हुआ है। पहले लूप में धारा I1 है, दूसरे लूप में धारा I2 है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करके दोनों लूप्स के लिए हम इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट लूप के लिए जो इक्वेशन आती है वो है E = Z1I1 plus I1 minus I2 Z3 is equal to Z1 plus Z3 I1 minus Z3 I2। ये इक्वेशन 1 है। सेकेंड लूप के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करने पर इक्वेशन आती है 0 is equal to Z2 I2 plus ZL I2 plus I2 minus I1 Z3। This is equal to minus Z3 I1 plus Z2 plus Z3 plus ZL I2। ये इक्वेशन सेकेंड है। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर हम लिख सकते हैं E0 is equal to Z1 plus Z3 minus Z3 minus Z3 Z2 plus Z3 plus ZL और I1 I2 कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है क्योंकि सर्किट में हमारे पास सिर्फ दो लूप्स हैं। Z मैट्रिक्स है Z1 plus Z3 minus Z3 Z2 plus Z3 plus ZL। इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर जो मान आता है वो है डेल्टा Z which is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1 plus Z1 plus Z3 ZL। जैसा कि अभी हमने देखा था कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ZRin is equal to डेल्टा Z अपॉन डेल्टा RR, जहाँ पर यह R मास के लिए लिखा गया था। इसी प्रकार यहाँ पर हम फर्स्ट मैश के लिए Z1 इनपुट निकालेंगे तो Z1in is equal to डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 11 होता है। डेल्टा 11 का मान निकालने के लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं और हमारे पास सिर्फ एक टर्म बचती है Z2 plus Z3 plus ZL। इसलिए Z1 इनपुट का मान हो गया डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 11 which is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1 plus Z1 plus Z3 ZL अपॉन Z2 plus Z3 plus ZL। अभी हमने देखा था कि अंतरित प्रतिबाधा निकालने के लिए ZTJK is equal to डेल्टा Z अपॉन डेल्टा JK minus 1 to the power J plus K होता है। इससे ZT12 को लिख सकते हैं डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 12 minus 1 to the power 1 plus 2। यहाँ J is equal to 1 है और K is equal to 2 है। डेल्टा 12 का मान निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं तो डेल्टा 12 का मान आता है माइनस Z3। यहाँ एक टर्म -1 to the power 3 और माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जो रिजल्ट आता है वो है Z1 Z2 plus Z1 Z3 plus Z2 Z3 plus Z1 plus Z3 into ZL divided by Z3। Z1in को हमने इक्वेशन 3 लिखा है और ZT12 को हमने इक्वेशन 4 लिखा है। Z1in और ZT12 के जो मान अभी हमने निकाले हैं उन्हें हम सर्किट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। Z1in और ZT12 के जो मान अभी हमने निकाले हैं इन मानों को हम सर्किट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। परिपथ में Z1in
इनपुट के दोनों टर्मिनल्स के बीच में प्रतिबाधा है। अतः यदि हम इनपुट के दोनों टर्मिनल से देखते हैं तो Z2 और ZL श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और फिर Z3 के समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो Z1 के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसलिए Z1 इन को हम लिख सकते हैं Z1 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ Z3 एंड Z2 प्लस ZL which is equal to Z1 plus Z3 Z2 plus ZL divided by Z3 plus Z2 plus ZL is equal to Z1 Z2 plus Z1 Z3 plus Z2 Z3 plus Z1 plus Z3 into ZL divided by Z3 plus Z2 plus ZL। यह Z1 इनका मान है। ZT का मान निकालने के लिए हमें I2 का मान निकालना होगा। पहले लूप की धारा I1 है, इसलिए I1 को लिख सकते हैं E अपॉन Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z3 प्लस Z2 प्लस ZL इज इक्वल टू E Z3 प्लस Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL। धारा I1 दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। Z2 प्लस ZL में जो धारा का मान है वो है I2, Z3 में से जो धारा का मान है वह है I1 माइनस I2। इन दोनों धाराओं का अनुपात इन दोनों प्रतिबाधाओं के अनुपात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिससे I2 का मान निकलता है Z3 I1 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। इसमें I1 का मान रखने पर हमें I2 का ये मान प्राप्त होता है Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL। ZT12 होता है E1 अपॉन I2। यहाँ E1 E के बराबर है, इसलिए ZT12 को हम लिख सकते हैं E अपॉन I2। ऊपर की इक्वेशन से इसका मान निकलता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL डिवाइडेड बाय Z3। हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 इक्वेशन 5 के बराबर है और इक्वेशन 4 इक्वेशन 6 के बराबर है। Thank you and have a nice day.